Selective hearing is a normal brain function that allows a person to focus on one voice or sound while filtering out other background noises. चयनात्मक श्रवण एक सामान्य मस्तिष्क क्रिया है जो किसी व्यक्ति को अन्य पृष्ठभूमि शोरों को छानते हुए एक आवाज या ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है. This is why someone can carry on a conversation with a friend at a loud concert or engage in discussion at a busy restaurant without being overwhelmed by surrounding noise. यही कारण है कि कोई व्यक्ति शोरगुल वाले संगीत समारोह में अपने मित्र से बातचीत कर सकता है या किसी व्यस्त रेस्तरां में आसपास के शोर से प्रभावित हुए बिना चर्चा कर सकता है. That's the standard definition of selective hearing. But there's another kind of selective hearing that happens when people hear something not based on what was actually said, but based on what they think was said. यह चयनात्मक सुनवाई की मानक परिभाषा है. लेकिन एक अन्य प्रकार की चयनात्मक सुनवाई भी होती है, जो तब होती है जब लोग किसी बात को इस आधार पर नहीं सुनते कि वास्तव में क्या कहा गया था, बल्कि इस आधार पर सुनते हैं कि उनके विचार से क्या कहा गया था. In other words, some founders interpret messages in a way that aligns with their own expectations or desires rather than what was clearly communicated. दूसरे शब्दों में, कुछ संस्थापक संदेशों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि वह उनकी अपनी अपेक्षाओं या इच्छाओं के अनुरूप हो, न कि जो स्पष्ट रूप से संप्रेषित किया गया हो. For example, Chris Johnson has been accused of saying things he never actually stated. उदाहरण के लिए क्रिस जॉनसन पर ऐसी बातें कहने का आरोप लगाया गया है जो उन्होंने वास्तव में कभी नहीं कही थी. Some founders thought they saw KYC, Know Your Customer, in the number 7, when in reality that was not what was communicated. कुछ संस्थापकों को लगा कि उन्होंने संख्या 7 में KYC, अपने ग्राहक को जाने, लिखा हुआ देखा है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं बताया गया था. It was more about how those founders wanted it to be interpreted, which is wishful thinking. Posts like that give the wrong message to others who read them. यह इस बारे में अधिक था कि संस्थापक इसे किस तरह से समझना चाहते थे, जो कि एक इच्छाधारी सोच है. इस तरह के पोस्ट उन्हें पढ़ने वाले अन्य लोगों को गलत संदेश देते हैं. And that becomes an exercise in futility. What is an exercise in futility? और यह एक व्यर्थ की कवायद बन जाती है. व्यर्थ की कवायद क्या है? What is an exercise in futility? It is an activity that has no point, use or meaning. One that produces no real result and therefore is not worth the effort. Defined by its own negativity, futility often feels like a cycle with no escape, a path that leads nowhere. व्यर्थता का अभ्यास क्या है? यह एक ऐसी गतिविधि है जिसका कोई मतलब, उपयोग या अर्थ नहीं है, जो कोई वास्तविक परिणाम नहीं देती है और इसीलिए प्रयास के लायक नहीं है. अपनी स्वयं की नकारात्मकता से परिभाषित व्यर्थता अक्सर बिना किसी निकास के एक चक्र की तरह महसूस होती है, एक ऐसा मार्ग जो कहीं नहीं जाता है. Yet some founders are stuck in this very cycle. Would you want to be among those who spread incorrect information? Those who are unknowingly following an empty, fruitless path? फिर भी कुछ संस्थापक इसी चक्र में फंसे हुए हैं. क्या आप उन लोगों में शामिल होना चाहेंगे जो गलत जानकारी फैलाते हैं, जो अनजाने में एक खाली, निरर्थक रास्ते पर चल रहे हैं? Founders who truly listen to what Mr. Ash Mufareh says are on a completely different path, a path of clarity, truth and direction. जो संस्थापक श्री अश मुफारेह की बातों को सचमुच सुनते हैं, वे पूरी तरह से अलग रास्ते पर हैं, स्पष्टता, सच्चाई और दिशा के रास्ते पर. Let's remember, no one knows more about Mr. Ash Mufareh's company than Mr. Ash Mufareh himself. So why would you choose to listen to others who may know less than you do? आइए याद रखें, श्री अश मुफारेह की कंपनी के बारे में श्री अश मुफारेह से ज्यादा कोई नहीं जानता. तो आप दूसरों की बात क्यों सुनना चाहेंगे जो शायद आपसे कम जानते हो? You are being talked out of what could be the greatest people-powered business opportunity ever designed, and it's about to deliver. But only when Mr. Mufareh tells us it's ready. आपको अब तक के सबसे बेहतरीन लोगों द्वारा संचालित व्यवसाय अवसर के बारे में बताया जा रहा है और यह लगभग पूरा होने वाला है. लेकिन तभी जब श्री मुफारेह हमें बताते हैं कि यह तैयार है. Marty and Chris are your direct pipeline to Mr. Mufareh. Listen to them, follow their guidance, and you will be rewarded with more than you deserve, more than you expect, and more than you need.
मार्टी और क्रिस श्री मुफारिह तक आपकी सीधी पहुंच है। उनकी बात सुने, उनके मार्गदर्शन का पालन करें और आपको पुरस्कृत किया जाएगा, जितना आप चाहते हैं उससे अधिक और जितनी आपको आवश्यकता है उससे अधिक। प्लीज सब्सक्राइब टू द बिल मस्ट चैनल। क्लिक द बेल फॉर ऑल नोटिफिकेशंस फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोस। कृपया बिल मस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। नए आने वाले वीडियो की सभी सूचनाओं के लिए घंटी पर क्लिक करें।